امام غزالی کہتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے پانی نہیں تو تیمم کرتا ہے، یہ آگ یا یہ جو مٹی ہے نا جہنم کی آگ کو اسے بجھا دے گی۔ اچھا ویسے جتنی بڑی آگ ہو اتنا پانی چاہیے، بڑے بڑے کنٹینر بڑے بڑے ٹینکر لگانے پڑتے ہیں تب جا کے آگ بجھتی ہے۔ وضو کا پانی تو بہت تھوڑا ہے، فرمایا اتنا بابرکت پانی ہے کہ یہ تھوڑے سے قطرے جو ہیں اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ پھر امام غزالی نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض کیوں ہیں، اور بھی تو کوئی فرض ہو سکتا تھا۔ دیکھو یہ صوفیاء کرام کی حکمت بھری باتیں ہیں۔ امام غزالی فرماتے 4 عذاب ہیں، وضو کے فرض کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ گویا رحمت الہی پکار رہی ہے، اے میرے بندوں وضو میں چہرہ دھویا کرو، قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، تمہارا چہرہ چمکے گا۔ فرمایا اپنے ہاتھ دھویا کرو، تمہارا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا سر کا مسا اور پیر دھویا کرو، تمہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ تمہارے سر پر جنت کا تاج سجایا جائے گا۔ پیر دھویا کرو، تمہارے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں نہیں پڑیں گی، تو پل صراط پر تمہارے پیر ڈگمگائیں گے نہیں بلکہ پل صراط سے تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کتنے ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے، خدا کی قسم اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، اس کے ساتھ ماں باپ کی برائی ہیں، اس کو بھی ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں اور ساری دنیا ماں باپ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، برباد ہی ہونا ہے۔ ماں باپ کو تنگ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو، ماں کا کوئی نہیں بدل نہیں، اور یہ دعا دے دے تو بندہ قدر پہنچ جاتا ہے۔ اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، شروع ہو گیا، اب ماں باپ پر بھی لوگ جمانا ہوگا، میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا، میں آپ کی خدمت کیسے کروں گا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کریے مومنٹ جمانا۔ ارے آج اگر کچھ بڑھ بھی گئے ہو نا، یہ نہیں کہ دعائیں تھی، اور ایک کیا بڑا آدمی ہو گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے۔ ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے ایک فلاں علاقے کا قصائی ہے۔ اب حیران ہو گیا، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے، ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر۔ ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، اندر گئے، گھر میں گئے کہ وہ بوڑھے ماں باپ بوڑھی شخصیات تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی اور دونوں دنیا سے چلے گئے۔ وہ نوجوان کسی کام سے گیا، واپس آیا، اپنے دونوں والدین کو دیکھا تو دونوں کا انتقال ہوا ہے، چونکہ وہ نہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تمہیں بتایا، تمہیں کون، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کرنا۔ آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ چلے گئے دنیا سے، آپ حضرت موسیٰ نے کہا بتاؤ کچھ اور دعا کرتے تھے؟ کہاں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو چبا نہیں سکتے تھے، روز کچھ دالیں چبا کر کھلاتا تھا، اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کو پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگی مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے۔ آپ بتاؤں کچھ بڑے آدمی واقعی جس کو کہتے بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی نہیں، کتنے بڑے وقت امام ہے، مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے، آپ کو کہتے کہ جاؤ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ لو، مفتی اعظم ہے، امام ہے کروڑوں حنفیوں کے۔ ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں بتائیے کتنا بڑا مفتی ہے، مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج دیو، آپ تو یہ ڈائریکٹ چلا دیتے ہیں نا، مجھے پتا کہ رکھو مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی، ماں کو تو پڑھائی کچھ نہیں، اب جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے۔ سنو امام اعظم یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ۔ ماں کو کہتے اچھا ماں مسجد کے امام کے پاس جاتے، اس مقرر کے پاس جاتے، وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کا مسئلہ بتا رہے ہیں، بتا کروں ماں نے بھیجا ہے تو حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں۔ ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں، پھر امام اعظم نے منع نہیں کیا۔ اچھا کئی میل کا سفر تھا، امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں، ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں سے لے کے جا رہے ہیں۔ ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں کو مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے، اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں جاتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس آتی ہیں، امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ ہوتا ہے ماں کی فرمانبرداری۔ آج پوری دنیا ان کی گنگا رہی ہے۔ سیدنا خالد بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے، اولیاء کے سردار ہیں، دیکھو ماں کی خدمت کیسے کرتے تھے۔ اپنی والدہ نے صرف کی رات سخت نہیں کیا، اب سے پانی مانگا، حضرت خالد بستانی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے، ماں سو گئی، ماں کے سر میں پیالہ لے کے کھڑے، رات بھر کھڑے رہے، سخت سردی میں پانی تھوڑا سا آپ جو ہیلوں پر گرا تو وہ پانی برف ہو چکا تھا۔ ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا خالد بستانی بستر کے کنارے کھڑے ہیں، کہ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ میں آپ کو پانی مانگا تھا، اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے۔ اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چندی سی بچ گئی تھی، جب وہ برف الگ ہوئی نا آج سے خون نکلنے لگا۔ حضرت خالد بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے جب دیکھا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اس کے ہاتھ میں لہو لہان ہو گیا، حضرت خالد بستانی کی ماں نے پتہ ساتھ کیا دعا دی کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ دیکھو کیا مقام ملا، اولیاء کرام کے سردار بن گئے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت ایسی کرو، اب ہونا کہ دل سے دعا نکلے، جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے۔ کیا خوبصورت دین ہے ہمارا، ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا۔ اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتے۔ ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے۔ ہم آج بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ
बच्चा हमें दीन से दूर करने का। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बच्चे बने, आपके मरने के बाद भी आपके लिए सच्चा जारिया बने, तो आपने अपने बच्चों को दीन की तरफ लाना है। कुछ औलादे वो हैं जिनकी माँ बाप ने तरबियत ऐसी थी, हम नहीं जाते खुद रास्ता कर रहे होते हैं, तो माँ का इंतजार हो गया, कुछ कुआं खुलवाना है, तो मस्जिद बनानी है, तो मदरसे में मेरी माँ के लिए मुझे कुछ करना है। क्यों? माँ ने तरबियत ऐसी थी, वालिद ने तरबियत ऐसी थी, उन्हें माहौल ऐसा दिया, तो माँ बाप को मरते ही उन्हें फिक्र हो गई, मेरी माँ कब्र में अकेली है, मेरा वालिद कब्र में अकेला है, उसने रोज मुझे खाना खिलाया था, आज मैं रोज उसे सवाब पहुंचाने का इंतजाम करूं। ये उस बच्चे के दिल में ख्याल कैसे आया? क्योंकि अल्लाह ने उसे अच्छा माहौल अता किया, माँ बाप ने उसको इस माहौल की तरफ बढ़ाया। तो मैं यहाँ वालिदैन से गुजारिश करूंगा, तो बताया अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो तो बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ दें और मरने के बाद भी तुम्हारे लिए सच्चा जारिया का बाइस बन जाए। आपके बच्चे आपके कितने में रहेंगे अगर आपने बच्चों को दीनदार बना दिया। अल्लाह करे ये फॉर्मूला समझ आ जाए ना, हम समझते बच्चा मेरी बात माने, मेरी क्यों मानता? अरे पहले से अल्लाह रसूल की बात मानने वाला बना दो, तुम्हारे भी मानने वाला बन जाएगा। कितनी जाएगा दिन की तरफ, इसे कुरान माँ बाप की तरफ भेजेगा, इसे हदीस माँ बाप की तरफ भेजेगी, इसे उलमा किराम माँ बाप की तरफ भेजेंगे। हम उस रास्ते पर भेजते जहां से बच्चा मुझे वापस मिल जाए। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितरों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसकी हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त वजीफा है। सूरह अन-नाज़िआत पढ़ने से जान कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशरह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है। सूरह तीन व ज़ैतून जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतर होते हैं। सूरह अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। सूरह कद्र तो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बय्यिना बर्स और यरकान का इलाज है। जिस आदमी जानवर पर नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। सूरह तकासुर को 300 बार पढ़ने से जल्द कर्ज अदा हो जाता है। कई लोग कहते हैं जनाब कर्ज बहुत है, चले कुरान का वजीफा ले लें अल-हाकुमुत तकासुर। ये जो सूरत है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज उतर जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए और सूरह कुरैश जान की हिफाजत के लिए बड़ी मुजर्रब है, बड़ा कमाल का वजीफा है। सूरह माऊन बड़ी मुश्किल के वक्त में पढ़ना बहुत मुफीद है। सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है। कई बे औलाद भी वज़ाइफ मांग रहे होते हैं। सूरह काफिरून चौथाई कुरान के बराबर है। सूरह ज़िलज़ाल निस्फ कुरान के बराबर है। सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। और सूरह फलक और सूरह नास से जिन और शैतान और हासिदों के शर से हिफाजत करती है। तो क्यों ना हम कुरान से दोस्ती कर लें, क्यों ना कुरान को अपना विर्द बना लें। अल्लाह चाहता है कि बंदा इस रैंक तक पहुंच जाए। अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ताकि मेरा बंदा सब्र कर ले तो इसको मर्तबा अता हो जाए। हाय हाय, यानी आजमाइश मुझ पर मेरे रैंक बुलंद करने, मेरे दर्जे बुलंद करने आई और हाय मेरी बेसब्री के मैंने वो सब सवाब जाया ना करें मेरे प्यारे साथी। मुश्किलें आती हैं। अच्छा पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक और बड़ा इशू है, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं, किसी को अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियां देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, हमें लगता है ये कितना मजे में यार, मैं अकेला परेशान हूं। ये आपकी भूल है। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के मसले और हैं, गरीब के मसले और हैं। शोहरत जिसको मिली है ना उसकी प्रॉब्लम्स और हैं, जो गैर मारूफ है उसकी प्रॉब्लम और है। जमाने में हर किसी को कुछ ना कुछ इशू जरूर है। ये ना समझे कि यार ये इतना मुस्कुरा रहा है, क्या पता है इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है। अब यकीन करें, बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% खुशहाल है। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। मैं क्या क्या बताऊं आपको, हमारे पास तो लोग दुआएं करवाने आते हैं ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैरों से जमीन निकल जाती है। और बाबा इतने बड़े घर में जाते हैं, उसकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई, कहते हैं अगर आपसे अलग से दुआ करवानी है। जब वो बेचारा अपना मसला बताता है ना, मुझे लगता है हमारा तो गम ही कुछ नहीं है, इतनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं आज की आपको मिसाल देता हूं। एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे, आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने हमें एक माशाल्लाह प्रॉपर्टी दावत इस्लामी के लिए बच्चों के मदरसे के लिए दी और उसके चंद दिनों बाद उनका विसाल हो गया। उनको बेचारों को कैंसर था। मैं उनके घर में दुआ करने गया, उनके बेटे ने मुझे जब गले लगा तो बेटा रोने लगा। अच्छा मैं समझा कि बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है। 16 दिन पहले इंतकाल हुआ। इंतकाल दुआ की, उसके मेरे कान में कहता है भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। क्या हो गया? मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया, वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा उनको, जिलों से। लेकिन मैं यकीन करें, मैं सच बता रहा हूं, मैं गाड़ी में बैठी मैं भी रोने लगा क्योंकि वो बंदा जब मुझे छोड़ने आया फिर मेरे गले लग के रो रहा था। सोचने लगा यार कितना दुख है लोगों को, अल्लाह ने कितनी बड़ी उन पर मेहरबानियां की है। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्लाह ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से कुछ नहीं है, मगर इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का दावे नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए अगर इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर बाजू का मायूस कर देते हैं, कितना तकलीफ है लोग। और हम है कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री, सब्र तो करें, अल्लाह की रिज़ा पर राजी तो रहे। मैंने आपको खानदान नबूवत का वाकया सुनाया, खाने को कुछ नहीं है, काश ये बात बस समझ आ जाए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, दुनिया भर को बताते हैं होता कुछ नहीं है, मत बताया करो दुनिया वालों, सही बताओ, मत बताया करो, अपने गम मत बताया, सवाब भी चला जाता है। और बाज़ औक़ात की दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम जब किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूं कुछ, बाद में जाकर दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है इसका ये मसला है, हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों। नात का शेर है, किसी का एहसान क्यों उठाना, किसी को हालात क्यों बताऊं दुनिया वालों को, मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे, अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम है और रब ज़बर की बारगाह में उधर करूं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं।
आका तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे डर से ही लौ लगी है। हाँ, अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज़ किया, उधर आंसू बहाओ, बताओ दुनिया वालों। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है। शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से बात करो ना। तो आज से ज़हन बना ले मेरे प्यारे साथी, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वक्त गुजारना है, अल्लाह की रज़ा पर राजी रहना है। तो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाए। तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। अब आते हैं इस पूरे वाक़े से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। तो कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लगती है। ना करें ऐसा, ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से गुज़ार ना हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपनी ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। अगर मैं और आप चाहते हैं कि दिल्ली आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे माल और असबाब सिक्योर रहे, हदीस पाक में फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। लेकिन यहाँ ज़कात देने के लिए तैयार नहीं, लोग लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए, ये माल ही अज़ाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करेंगे। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है। यू कैन सर्च योरसेल्फ, आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स क्या कौन कौन सी हुई, आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है, तो गंदम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा। शरीयत का हुक्म क्या है, जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल होगी 10%, तो सिर्फ क्या कहते हैं 10वें हिस्से को वो